What an awesome worship, huh? बहुत ही एक अच्छी सुंदर हमने आराधना को सुन पाए। The worship song that we sang at the end said that his presence is all that we need, right? और जो हमने आखिरी का जो आराधना के शब्दों को सुना कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में भरपूरी की है। The interesting thing is that as much as we need his presence, he also needs our presence. और जैसे कि हमने अभी देखा सुना कि उसकी उपस्थिति हमारे लिए जरूरी है, पर हमारे उसकी उपस्थिति में भी रहना अवश्य है। He constantly wants to draw us near to him वो चाहता है कि हम उसके करीब आए so he can draw near to us. और जब हम उसके करीब आते हैं वो हमारे करीब आता है। I've been in ministry for a long time. मैं मेरी सेविकाई को हुए बहुत समय हो गया है। I known the Lord for a long time. Pardon me? I known the Lord for a long time. और मैं प्रभु को बहुत सालों से जानता हूँ। And I find that every time and every day, every year, he continues to want to invite me to be with him closer. और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन, प्रति साल, प्रति महीना, हर दिन प्रभु चाहता है कि मैं उसको अपने जीवन में स्वागत करूं। I believe that he's calling us now to deeper waters. और मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि वो ये चाहता है कि हम उसके साथ नजदीकी में आ पाए। He's calling us to deeper waters because he wants us to know him better. और वो इसलिए चाहता है कि हम उसके करीब आए, कि हम उसको अच्छी तरह जान सकें। God does not want us to live a superficial spiritual life. परमेश्वर ने चाहता कि हम इसी प्रकार ऐसी ही आत्मिक जीवन को जिए। He wants our lives to be deepened. वो चाहता है कि हमारा जीवन जो है प्रभु में जो है बिल्कुल ही बिचवाई से होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। There are many Christians and even ministers in the gospel today ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं, ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो they only do what प्रचार is के necessary. प्रचारक भी हैं। They only do what is asked of them. They only do what they have to do. सॉरी। It's okay. Yes, Pastor. Yes, Pastor. There's ministers in our life today that they only do what they have to do. और आज की जो सेवक लोग हैं They वो only इस do what प्रकार is सेवा करते हैं, necessary. वो सिर्फ अपने कार्य के लिए और अपनी सेविकाएं को इसी प्रकार करते हैं कि उनको सैलरी मिल पाए, But they don't go above and beyond. और इससे ऊपर वो लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। They only do the necessary. वो सिर्फ अपनी ही That's आवश्यकताओं not को enough for करते हैं। God. That is not ये enough for परमेश्वर God. के लिए अच्छा नहीं है, He ये wants more परमेश्वर of our के लिए भला lives. नहीं है। He wants us वो to go deeper हमारे with जीवन him. से कुछ, वो हमारे जीवन से बहुत कुछ चाहता है। The only way that we're going to know him better is by going deeper with him. और उसको जानने के लिए हमें और भी अपने जीवन को उसमें देने की आवश्यकता है। I want to invite you to read a passage of scripture with me this morning. मैं इस सुबह में आपको स्वागत करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से पढ़ने जा रहे हैं। Luke chapter 6, verse 46 to 49. I'm going to read it first and then my brother can read it after me. And it says as follow: Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man that built a house who dug deep and laid a foundation on the rock. When a flood came, the torrent struck the house but could not shake it because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck the house, it collapsed, and its destruction was complete. Pastor, please.
You हाँ, can read. लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 46 से हम 39 तक पढ़ रहे हैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह उसकी किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। It's interesting that in this passage says, "Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I ask you to do?" और इस हम संदेश में इस प्रकार देखते हैं कि हे प्रभु प्रभु कह के क्यों कहते हो जब तुम मेरी बात को नहीं मानते हो। If you remember, I said that many of us are only doing what is necessary. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ही आवश्यकताओं के लिए ही अपने जीवन को जीते हैं, But I don't think the instructions of God is to do the necessary. और वो कभी भी परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन नहीं करते जो कि जरूरत है। If we notice in the story, there are two men, they are building a house. और इस कहानी में हम देखते हैं कि यहाँ दो व्यक्ति है जिन्होंने अपने घर को बनाया। The building process is different. बनाने का तरीका अलग अलग है। It seems that one man is following instructions and the other man is building the house as he wants. और जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो आज्ञा का पालन करता है और दूसरा व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार करता है। So there's a couple questions that I have this morning. What is it that you're building? और हम देखते हैं कि सुबह में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है वो घर बनाने की प्रक्रिया है, And what are you building on top of? और आप क्या बना रहे हैं। Are you building sandcastles? सिर्फ आप ऐसी ही इमारतों को तैयार कर रहे हैं, Or are you building upon the rock that is Jesus Christ? या आप अपनी उस मकान को जो यीशु मसीह नींव है, आधार है, उसके ऊपर बना रहे हैं। Because the Bible tells us in Matthew that he who builds in the sand is foolish. और मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखता है, जो व्यक्ति बालू But में he घर who builds बनाता in the है वो rock is a मूर्ख है, wise man. और जो चट्टान में बनाता है वो धर्मी व्यक्ति है। We are building castles and we don't realize that the ground underneath it is moving. हम मकान तो बना रहे हैं पर हम ये भूल जाते हैं कि जो इसके अंदर की नींव है वो हिल रही है, Because we are invested in building for ourselves and not for the purpose of the kingdom of God. और हम जो बनाते हैं वो अपनी जरूरतों के लिए बनाते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए, पर परमेश्वर के लिए हम नहीं करते हैं। We are building it over sand that is changing continuously. हम उस भूमि उस हम बालू के ऊपर घर बनाते हैं जो हर समय चलता रहता है, घूमता रहता है। We must remember that the only one that doesn't change is Jesus Christ, the rock, the unmovable rock. और आप इस बात को याद रखिए कि जो चट्टान यीशु है वो कभी बदलता नहीं है। God is saying that we have to set our footings down. और परमेश्वर कह रहा है कि हमारी जो नींव है, हमारी जो बुनियाद है, वो भूमि में धसी रहनी चाहिए। In verse 48, it says that a man was building and he dug deep down. He went deep down. And I think that if we're going to build, we have to go deep down. और हम देखते हैं कि 48वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। इसका कहता मतलब यह है कि हम अपने नींव को, अपने जीवन की नींव को जो है उसकी भूमि को हम गहरे में ले जाएं। Because before you build up, you're going to have to dig down. और जबकि आपको ऊपर घर बनाना है
तो उससे पहले हमें और नीचे गहराई में नींव को रखना है। When you're digging down, you're going to find things that are in the way, they've been buried for a long time. और जब आप गड्ढे को खोदते हैं, उस नींव को बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए जो रुकावट का केंद्र होता है। As you dig down, you're going to find obstacles, things that have to be removed. और जैसे आप गड्ढा खोदते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पे कुछ रुकावटें हैं, उन्हें हमें निकालने की जरूरत है। You're going to find the obstacles of self. और जो रुकावट है वो आत्मता की रुकावट है। Where the obstacles where I want to do it my way, I want to build what I want. और वो रुकावट इस प्रकार है कि मैं जो चाहता हूं, मैं जो मेरी इच्छा उसको मैं करना चाहता हूं। You're going to find the obstacles of false ambitions and unreachable dreams. आपके जो रुकावट इस प्रकार भी है कि जो इच्छाएं, जो झूठी इच्छाएं हैं, जो झूठे दर्शन हैं, वो आपके जीवन की रुकावटें हैं। You're going to find all those things that you've been pursuing all your life, that they're going to have to be removed out of your life. और आप देखते हैं कि आपके पूरे जीवन के अंतरकाल जो समस्याएं आपके जीवन में थी, वो कई बार वो समस्याएं आपको रुकावटें बनती हैं। And some of those things may be very important to us, but they got to be removed. और हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमारे लिए लाभदायक हो, पर हमें इनको बाहर निकालना है। परमेश्वर चाहता है कि हम इससे बाहर निकलें। You can't get deep with God until you remove everything that is in the way in your life. आप तब तक परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते हैं जब तक आप उन बातों को, उन रुकावटों को अपने जीवन से दूर नहीं करते हैं। Remember, we are invested to build something for the kingdom of God. आप याद रखें, हम जो योगदान करते हैं वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। We're invested in building lives, reconciliate life, bring salvations to life. हमें इसलिए रखा गया है कि हम लोगों के जीवन को बदलाव करें, लोगों के जीवन को हम दे सकें। Before we can go up, we have to go down. The Bible says in Matthew 12 that he who humbles himself will be exalted. और जैसे कि हमें ऊंचाई पे चलना है, हमें पहले निचाई को देखना है। हम देखते हैं वचन इस प्रकार कहता है, जो अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, वो ऊंचे पे किया जाएगा। Verse 47 of Luke, it says as follow: everyone who comes to me, everyone who जो comes to me. और उसके 37 आयत में इस प्रकार है, जो कोई मेरे पास आता है। When we are start digging down and we're removing the obstacles of our lives, we can come to him. और जब हम अपने जीवन के अंदर, जब हम गड्ढे को खोदते हैं अपने जीवन के अंतराल में, आत्मा के अंदर जो भी रुकावटें हैं, जब उसको हम निकालते हैं, हम परमेश्वर के और नजदीक आते हैं। When those obstacles are removed, now we can come to Jesus. और जब ये रुकावटें हमारे जीवन से दूर होती है, तब हम परमेश्वर की ओर आते हैं। Matthew 11:28 says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 में 20 में इस प्रकार कहता है, ओ जो बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। It is an invitation to come to him. और ये आपके लिए निमंत्रण है कि आप प्रभु में आइए। We sang this morning, your presence, Lord, your presence, your presence, your presence. And he says, you can come to me. You can come to my presence. इस सुबह में परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी मेरी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति में जब आओगे तो तुम मेरे साथ होगे। In Hebrews chapter 4, verse 16, it's a verse that you should never forget. इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 6 आयत को कभी नहीं भूलिए। It says, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in the times of need. जैसे लिखता है कि जो कोई
उसकी अनुग्रह को चाहता है, उसकी दया को चाहता है, वो उसके करीब आ सके कि उसको अनुग्रह और शांति मिल पाए, विश्राम मिल Did, पाए। did you hear that he says that we can come to him so we can get help in the times of need? और जब हम आपने सुना कि जब हम उसके करीब आते हैं, जब उसके पास आते हैं, जब समय पे हमें जो कुछ चाहिए है, चाहे आवश्यकता, वो मिलता है। He says that there's grace in his presence. He says that there's grace in his presence. उसके अनुग्रह में जीवन है। Grace is unmerited favor. जो अनुग्रह है वो परमेश्वर के ओर से हमें मुफ्त में दिया गया है। But grace is also power. He says, my grace is sufficient. और उसका जो अनुग्रह है वो हमारे लिए बहुतायत का है, बहुत। He says, you can come to me. You can come into my presence. तुम मेरे पास आओ, तुम मेरी उपस्थिति में आओ। Once we come to him, then he says, he who hears my words. और जब हम उसके पास आते हैं, वो कहता है वह जो मेरी आवाज को सुनता है। I think that we are in a season in life where we need to hear what God is saying. और ये समय है कि हम प्रभु की आवाज को सुने, वो क्या कहना चाहता है। And the problem is not the word of God. The और problem is बात not ये the है word कि of God. बात ये नहीं कि परमेश्वर का वचन है। The problem is that we are not listening to the word of God. और बात यह है कि हम जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। We're not listening to what he's saying. हम नहीं सुनते कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। Our lives are too busy. हमारा जीवन बहुत ही व्यस्त है। We have too many things that we are doing. हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम है जो हम करते रहते हैं। The phone is ringing, the email is coming, people are talking to us. We have appointments to do. We are so busy in life today, and we don't have time for the voice of God. हमारा फोन बजता रहता है, हमारा ईमेल हमारे से रहता है, बहुत सारे लोग हमसे आते और मिलते रहते हैं। हमारा जीवन जो है वो इस प्रकार व्यस्त रहता है। I spend a lot of time with God, taking off out of my head all of the voices that come, all of the things that I have to do, getting them out of the way so I can hear God's voice. मैं जब प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ, बहुत सारी बातें मेरे सिर के ऊपर से गुजरती रहती हैं, बहुत सारी आवाजें आती रहती हैं, पर मैं तो कहता हूँ कि ये आवाजें मुझसे दूर हो जाती हैं जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बना रहता हूँ। The church is in trouble today because pastors are not taking time to take all that stuff away and allow the voice of God to speak into their mind, to their spirit. आज कलीसियाओं में इस प्रकार की समस्याएं हैं क्योंकि जो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के अगुए हैं, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। वो तमाम उन संसारिक बातों को अपने जीवन में लगाए रखते हैं। We are being foolish in how we do things. God's always want to give us instructions in how to build his home. और परमेश्वर अपने आदेशों को, अपने निर्देशों को हमारे को देना चाहता है कि हमें अपने जीवन को, इस घर को किस प्रकार बनाना है। He wants us to be doers of his word. और वो चाहता है कि हम क्रियाशील हो जाएं। He gives us instructions in how to build his house. वो हमें निर्देश देता है कि किस प्रकार हमें प्रभु के घर को बनाना है। All through scripture, we have seen God being very specific in how we're supposed to build. और हम पूरे इस समाचार में देखते हैं कि परमेश्वर हर बात में जो है हमें इस बात को समझाना चाहता है कि किस प्रकार हमें प्रभु के घर को बनाना है। If you remember, God told Noah to build an ark, and he gave him a list exactly and how he was supposed to build that ark. अगर आप याद रखें, नोहा को परमेश्वर ने जो बताया, उसको बुद्धि दी, उसको ज्ञान दिया, उसको समझ दिया कि किस प्रकार उस जहाज को बनाना है। If you remember, he gave us specific instructions in how to build the ark of the covenant.
और परमेश्वर ने नूह को जो बातें हैं वो सही तरीके से बताई है कि किस तरह उस वाचा के जहाज को बनाना है। He's always been very specific in his instructions. वो अपने आदेशों में बिल्कुल ही सही है और हमें सही बताता है। The problem with today is that we want to do it our way. मुश्किल ये है आज के दिन में कि हम अपनी ही रीति से चलना चाहते हैं। We think we know better. हम सोचते We, हैं हम उससे बहुत अच्छे हैं। we think we have better plans than the plans that God has. हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छी योजना है, परमेश्वर से भी बेहतर योजना है। We are so busy planning what we're supposed to do, but we are not busy waiting and listening to the word of God. हम इतने व्यस्त हैं अपने जीवन के अंदर कि हम अपने समय को प्रभु को नहीं देते कि हम उसकी आवाज को सुन सकें। Psalms 46 says, "Be still and know that I am God." और भजन संहिता 40 कहता है कि ध्यान रखे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। If we follow his instructions, he promises, he gives us promises. और यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो हमें आदेश देता, हमें निर्देशक देता है। If you follow my word, he says, you will be able to withstand the storm. यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, उस पर स्थिर रहोगे। He says, if you follow my word, the floods are going to come. अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे और तो धाराएं बहेंगी, The winds are going to come. हवा आएगी। Your house will be stricken. यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो ये तुम्हारा घराना जो है, तुम्हारा घर जो है वो डूब जाएगा। It would not be torn down. वो गिराया जाएगा, उठाया नहीं जाएगा। Because he's well built. इसलिए तुम अपने घर को बनाइए। I love it. I think that the biggest things that we can hold on to is God's promises. और ये मुझे अच्छा लगता है कि जब हम प्रभु की वाचा को थामे रखते हैं। He is the God that is the rock, the foundation of our faith. और वो परमेश्वर है जो उस विश्वास की बुनियाद है। He's the foundation that never moves. वो ऐसा नींव है, वो ऐसी बुनियाद है जो कभी टलने का नहीं, हिलने का नहीं। He is the God that is faithful. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is the God that doesn't change. वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। He is the God that fulfills his word. वो अपने वाचा को पूरा करता है। He's the guy that speaks and does it. वो परमेश्वर है जो बोलता है और उसको पूरा करता है। He's the same yesterday and today. वो आज और कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। And if you did it once, he'll do it again. अगर वो जो कुछ कहता है उसको वो पूरा करके रखता है। He's the God that doesn't sleep and doesn't back down. वो ना तो ऊँगता है ना तो वो सोता है। He's not the God that is far away. He's the God that is present. वो इतना दूर नहीं है पर हमारे नजदीक परमेश्वर है। He's promised us to never leave us. वो कहता है मैं तुम्हें ना त्यागूंगा। He's promised to never forsake us. वो हमें नहीं छोड़ेगा। He's promised to always be with us. वो कहता है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ बना रहने वाला परमेश्वर। But we must be doers of the word. वो हम उसकी शब्दों को अपने जीवन में पूरा करें। He's promising to us. He says, if you do this, no weapon forged against you shall prosper. Isaiah 54. और जगह यदि आप इसको करते हैं तो तुम भलाइयों को, उत्पत्तियों को देख पाओगे। It says, no weapon forged against you shall prosper. कोई भी हथियार तुम्हारे को हानि कर नहीं देगा। Even though armies may rise against you, your heart should not fear. कोई भी चट्टान, कोई भी शत्रु तुम्हारे ऊपर आ पड़ेंगे पर तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। Because he is faithful. क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। Isaiah says, this is the heritage of the servants of the Lord.
declares the Lord. ये वो विरासत है जो परमेश्वर के लोगों के लिए है, जो परमेश्वर आपको बता रहा है। Loved ones, I believe that God is calling us प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपको बुला रहा है, I believe that He's calling us to go deeper with Him. और वो इसलिए बुला रहा है कि हम उससे और गहराई से संबंध जोड़ सकें। But I believe there's things that we have to remove out of our lives. हमें वो सारी बातें जो हमारे जीवन के लिए आशीष में नहीं है, उसको अपने जीवन से निकालना है। I think it's time I think it's time for us to be hearers of the word of God. और ये समय है कि हम प्रभु के वचन पे अपने ध्यान लगाएं And to begin to do what He's asking us to do. और वो करें जो वो हमसे करवाना चाहता है। To build our lives, our ministries, in the rock that is Jesus Christ. हम जीवनों को बनाएं, अपनी सेविका को बनाएं, जो यीशु मसीह के जो चट्टान है उसके ऊपर। That's what I got for you this morning. May God bless you and enrich you. और इस सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष करे।